All right, hello everyone. So in this video, we'll take up a very significant portion of tautomerism, which is enolization of carbonyl compounds. I did tell you the conversion of keto form to enol form is called enolization, and in this video, we'll see the order of enolization in various carbonyl compounds. To begin with, we'll talk about normal aldehydes and ketones. I have written it point-wise for your convenience. So point one is in normal aldehydes and ketones, enolic content is negligibly small. Normal aldehyde ketone में enol content बहुत कम होता है, less than 1%. Keto form is the predominant form. C for ethanol. This is the keto form. You see the carbonyl group, alpha hydrogen gone, double bond, OH, enol. So this is for ethanol, the enol form. Acetone, the enol form. Butanol, there could be two enol. यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन है. यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा तो नेचुरली you'll get a pi bond here. यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन जाएगा you'll get a pi bond here. So as you could see, for basic normal ethanol, acetone, butanone, even for a cyclic compound, the enol content is not more than 1%, 1.2% in this case, suppose. We'll talk about which is major enol, when we learn more about stability of alkene. A more substituted alkene is more stable. So this is point one. In normal aldehyde ketone, enol content is negligibly small. Enol content इतना कम होता है कि डबल बॉन्ड का कोई टेस्ट मिलता नहीं है, सिर्फ कार्बोनिल का रिएक्शन देगा. ये कंपाउंड सिर्फ कार्बोनिल का रिएक्शन देगा, डबल बॉन्ड का या OH का कोई रिएक्शन नहीं देगा. ब्रोमीन वाटर डीकलराइज नहीं करेगा, अनसैचुरेशन का कोई टेस्ट नहीं देगा. दिस इज लेस देन 1%. नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन प्रीडोमिनेंट फॉर्म इज कीटो फॉर्म. दिस इज मोर देन 99%. द कीटो फॉर्म इज मोर देन 99%. दिस इज मोर देन 99% and the enol form is less than 1%. Now this is because C double bond O has more bond energy than C double bond C. You'll learn कोई भी बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. यू लर्न इन थर्मोकेमिस्ट्री. यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है. सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज़्यादा होता है. सो इट विल टेक मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड सी विल लिबरेट लेसर एनर्जी. So in simple language, this is more stable, this is less stable. Keto form is generally more stable than the enol form because C double bond O has more bond energy than C double bond C. And roughly almost 50 kilojoule per mole is the difference. The difference between bond energy is generally around 50 kilojoule per mole. So because this has more bond energy, this is difficult to break. This is not going to generate as much heat as the amount of heat which is required to break this. This has more bond energy, this is more stable. तो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन में इनोल फॉर्म इज नेग्लिजिबल, लेस देन 1%. एंड दिस इज व्हाई इन नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन द इनोल कंटेंट बीइंग इनसिग्निफिकेंट, कोई डबल बॉन्ड का अनसैचुरेशन का OH का टेस्ट भी नहीं देता है. यहाँ पे टॉटोमेरिज्म डिस्कवर भी नहीं हुआ था. फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज फाउंड इन अ कंपाउंड कॉल्ड एसिटोएसिटिक ईस्टर. सो इनोलिक कंटेंट इज सिग्निफिकेंट इन एसिटोएसिटिक ईस्टर. Note these names: acetoacetic ester, ethyl acetoacetate. EAA is a very popular abbreviated form. It's a type of beta keto ester. See, I have written it CH3 C double bond O, CH2 C double bond O, OC2H5. तो ये एक ईस्टर है, ये एक ईस्टर है. नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं. बीटा पोजीशन पर कीटो है. ये एक तरह का बीटा कीटो ईस्टर है, ये एक तरह का बीटा कीटो ईस्टर है. इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. एसिटोएसिटिक ईस्टर, इथाइल एसिटोएसिटेट, EAA, सारा नाम पता होना चाहिए. This is where the enol content is significant. It's around 7%, 7 to 8%, 7.8% to be precise. इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म डिस्कवर हुआ था. साइंटिस्ट कॉल्ड यूथर, ही फाउंड टॉटोमेरिज्म, ही फाउंड इनोल कंटेंट. इनोल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होगा तब तो इनोल डिस्कवर होगा. So this is a compound where enol content was discovered, tautomerism was known. First of all, know all the names. Acetoacetic ester, इथाइल एसिटोएसिटेट भी बोलते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ बीटा कीटो ईस्टर. देखो ईस्टर का बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है. नो बीटा कीटो ईस्टर में इनोल कंटेंट थोड़ा ज्यादा होता है. द रीजन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ड्रॉ द इनोल. यू विल वांट टू ड्रॉ द इनोल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पर कार्बोनिल का है, ये ईस्टर का है. जो कार्बोनिल का सी डबल बॉन्ड हो है, कार्बोनिल का सी डबल बॉन्ड हो है, उसका इनोल बनाना है. इसका इनोल नहीं बनाना है बिकॉज इनोल हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का बनाएंगे, कीटो फॉर्म का इनोल बनाएंगे. यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है. We'll always draw this as the major enol. We'll always draw this as the major enol. We'll see that दो कार्बोनिल के बीच वाला CH2, दो कार्बोनिल के बीच वाला CH2 हमेशा हाइड्रोजन जल्दी लूज करता है. सिर्फ टॉटोमेरिज्म में नहीं,
पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। दो कार्बोनिल के बीच वाला CH2 को एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ये हाइड्रोजन जल्दी छोड़ता है। यू नो, अगर कॉन्जुगेट बेस हाइड्रोजन छोड़ने के बाद कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो तो नेचुरली एसिडिटी ज़्यादा रहती है। मैंने ना इसका कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। मान लो अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, ये अगर इसका कॉन्जुगेट बेस है नेगेटिव, इमेजिन यहाँ से H+ निकला, ये अगर H+ छोड़ा, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये नेगेटिव, लेफ्ट में भी रेजोनेट करेगा, राइट में भी रेजोनेट करेगा, लेफ्ट में भी रेजोनेट करेगा, राइट में भी रेजोनेट करेगा, दोनों तरफ रेजोनेट कर सकता है, बहुत स्टेबल है। तो ऐसा कंपाउंड जहाँ पर दो CO के बीच में, दो कार्बोनिल के बीच में मिथिलीन हो, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं। दो कार्बोनिल के बीच वाले को एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। इसका एसिडिटी ऐसे भी ज्यादा रहता है, हाइड्रोजन बहुत प्रॉम्प्टली लूज करता है, तो इसी का हाइड्रोजन लूज करेंगे, यही इनोल बनाएंगे। इन द नेक्स्ट पेज विल सी दैट दिस इनोल इज स्ट्रक्चरली आल्सो वेरी स्टेबल, but first of all you will want to know the name of this compound, the structure of this molecule. EAA is the popular form, this is where tautomerism was discovered, and the major enol. Now we'll figure out why this enol is particularly stable. So we move to the structure of this enol, and this time I have drawn it using the bond line form. It's very important you learn the bond line form very quickly. This is the real picture in most of the question papers in current generation of textbooks. हर बार कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखा रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड हो, CH2C डबल बॉन्ड हो, C2H5 समझना पड़ेगा। ET मीन्स इथाइल। ये देखो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वाला कार्बन है, ये CH2 है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ये CH2 है। ये अल्फा बीटा, बीटा कीटो ईस्टर है, बीटा कीटो ईस्टर है, इथाइल एसीटोएसीटेट। इसका OH बनाओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, इसका OH लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये OH बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर इनोल बनता है, ये रेजोनेंस करता है। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड आने से एक तो ये कार्बन का एसिडिटी ज़्यादा था, दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन आने से ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट करता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन में है। एरो हेड ये कॉन्जुगेशन में, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। एक तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इनोल रेजोनेंस से स्टेबल है, दूसरा इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये O के ऊपर में पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, H पार्शियल पॉजिटिव रहता है, ये खींचेगा। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं। यू विल वांट टू नो इट वेरी पर्टिकुलरली। इथाइल एसीटोएसीटेट या किसी भी बीटा कीटो ईस्टर का इनोल कंटेंट ज्यादा रहता है, यूनिट्स अराउंड 7.8%, बिकॉज दिस इनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय दिस इज रेजोनेंस एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज कॉल्ड चिलेशन। ये बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चिलेशन भी बोलते हैं। चिलेशन का लिटरल मीनिंग होता है रिंग फॉर्मेशन, चिलेशन का लिटरल मीनिंग होता है रिंग फॉर्मेशन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक रिंग जैसा बनता है। तो यहाँ पर इनोल स्टेबल है कॉन्जुगेशन से भी और ये रिंग फॉर्मेशन से भी। बीटा कीटो ईस्टर से ज्यादा होता है बीटा डाइकीटोन में, बीटा डाइकीटोन में, बीटा डाइकीटोन को 1,3 डाइकीटोन भी बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल एसीटोन, ये एसिटाइल ग्रुप है। ऐसा लगेगा एसीटोन में हाइड्रोजन की जगह एसिटाइल लगा हुआ है, नाम तो ऐसे भी धीरे धीरे सीख लोगे, पर एसिटाइल एसीटोन इज बेसिकली अ 1,3 डाइकीटोन। अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको अल्फा बोले तो बीटा डाइकीटोन, बीटा डाइकीटोन। ये मैंने नॉर्मल फॉर्मूला भी लिखा है, बॉन्ड लाइन फॉर्म भी लिखा है। इसका इनोल कंटेंट और ज्यादा होता है, इसका इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। बीटा कीटो ईस्टर में ज्यादा होता है, बीटा कीटो ईस्टर से ज्यादा होता है बीटा डाइकीटोन में। यहाँ पे इनोल कंटेंट इज ऑलमोस्ट 76%, हियर द इनोल कंटेंट इज ऑलमोस्ट 76%। सी नाउ कीटो फॉर्म कम हो जा रहा है, इनोल कंटेंट ज्यादा हो जा रहा है। येट अगेन दो कार्बोनिल के बीच में जो CH2 है, दो कार्बोनिल के बीच में जो CH2 है, इसी से हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ पर भी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, यहाँ पर कीटो फॉर्म कम हो गया, इनोल फॉर्म ज्यादा हो गया। देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, यू विल मेक इट COH डबल बॉन्ड CH CO CH3, और इसका रेजोनेटिंग फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर यहाँ इनोल कंटेंट इतना क्यों बढ़ जाता है? यहाँ पे इनोल कंटेंट इतना क्यों बढ़ जाता है? यहाँ पे इनोल कंटेंट इतना इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस, ये कंजुगेशन, ये जो रेजोनेंस हो रहा है, इनोल का जो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस का स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट बीटा कीटो ईस्टर से ज्यादा है। देखो ये बीटा कीटो ईस्टर है, अल्फा बीटा, दिस इज अ बीटा कीटो ईस्टर, और ये बीटा डाइकीटोन है, दिस इज अ बीटा डाइकीटोन।
मैंने दोनों का इनोल बनाया है, इसका भी इनोल बनाया है, इसका भी इनोल बनाया है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये जो बीटा कीटो ईस्टर का इनोल है, बीटा कीटो ईस्टर का इनोल है, यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है ये इनोल 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 में ये पाई बॉन्ड आया, ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, ये बॉन्ड हमेशा पोलर रहता है, ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव रहता है। अब ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव है वो इस पाई बॉन्ड को खींचता है। यू विल वांट टू बी वेरी अटेंटिव, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को खींचता है, ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को खींचता है। ये कॉन्जुगेशन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर क्या नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को खींचता है, ये पॉजिटिव इस पाई बॉन्ड को खींचता है। इनोल में ये पाई बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट रहता है। दोनों में डिफरेंस है कि बीटा कीटो ईस्टर का इनोल में, बीटा कीटो ईस्टर का इनोल में यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है, तो ये पॉजिटिव को या तो ये पाई बॉन्ड न्यूट्रलाइज कर सकता है या ये लोन पेयर न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस पॉजिटिव को ये पाई बॉन्ड भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, लोन पेयर भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। मतलब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पर एक टिक लगाता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर एक टिक लगाता हूँ। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड भी आ सकता है, ये लोन पेयर भी आ सकता है। बीटा कीटो ईस्टर का इनोल में और बीटा डाइकीटोन का इनोल में डिफरेंस है ये ऑक्सीजन का। ये पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये लोन पेयर भी आ सकता है, ये पाई बॉन्ड भी आ सकता है। मैंने यहाँ पर भी एक टिक किया, यहाँ पर भी एक टिक किया है, पर यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड ही आएगा। तो यहाँ पर एक टिक, यहाँ पर एक टिक, यहाँ पर मैंने 2 टिक किया, यहाँ पर डबल टिक किया, मतलब दिस द ओनली पॉसिबिलिटी। यहाँ पर इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पाई बॉन्ड को आना ही होगा। नेचुरली इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड में, इस पाई बॉन्ड का रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, इस पाई बॉन्ड और कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। This positive carbon, because of the polarity of C double bond O, is causing this pi bond to move and thus be involved in resonance. We call it conjugation, double single double. बीटा कीटो ईस्टर का इनोल में ये जो पॉजिटिव है ये लोन पेयर भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये एक ऑल्टरनेट तरीका है। I am trying to speak in a manner which is easy to understand right now because these are initial days of organic chemistry. Later on, I can speak in a more complicated, more sophisticated language rather. अभी ये पॉजिटिव ये पाई बॉन्ड से भी न्यूट्रलाइज हो सकता है, लोन पेयर से भी न्यूट्रलाइज हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, इधर दिस विल गेट रेजोनेट और दिस लोन पेयर विल गेट रेजोनेटेड। 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर देयर इज नो पॉसिबिलिटी, दिस विल हैव टू बी इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। सो बिटवीन दिस पाई बॉन्ड और दिस इनोल ऑफ बीटा कीटो ईस्टर एंड दिस इनोल ऑफ बीटा डाइकीटोन, दिस पाई बॉन्ड इज इन्वॉल्व टू अ लार्जर एक्सटेंट। इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू द प्रीवियस वन, इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो ये इनोल ज़्यादा स्टेबल है। दिस इनोल इज मोर स्टेबल by the same resonance or conjugation, by the same resonance or conjugation, because the involvement of this pi bond is more, here resonance is more stabilizing. So beta डाइकीटोन में suddenly इनोल कंटेंट बहुत बढ़ जाता है, बट बीटा कीटो ईस्टर में डिस्कवर हुआ था, बीटा डाइकीटोन में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ फिनाइल ग्रुप, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ फिनाइल ग्रुप। रीड केयरफुली, प्रेजेंस ऑफ अ फिनाइल ग्रुप further increases इनोल कंटेंट। So here you have a phenyl group pH, here you have a phenyl group, small pH will stand for a phenyl group, pH C double bond of CH2 CO CH3, so this is also beta diketone, this is also beta diketone with a phenyl group, this is also beta diketone with a phenyl group। अगर ये phenyl group होगा, वापस ये CH2 एक्टिव मेथिलीन है, 2 कार्बोनिल के बीच में एक्टिव मेथिलीन है, यहीं से हाइड्रोजन लोगे, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, दिस विल बिकम OH, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ये phenyl group आने से क्या हुआ, कॉन्जुगेशन तो डबल सिंगल डबल है ही, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी चिलेशन है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, पर ये फिनाइल ग्रुप होने से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये फिनाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जो पहले नॉर्मल कॉन्जुगेशन था अब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। तो सेम फैक्टर्स ऑपरेटिंग, चिलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट कॉन्जुगेशन हियर इज एक्सटेंडेड। इट्स लाइक अ रूल, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी होगा, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना स्टेबिलिटी होगा। रिंग की वजह से ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो नेचुरली मोर कॉन्जुगेशन विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। अगर दोनों तरफ फिनाइल होता तो वो ऑलमोस्ट 100% इनोलिक होता। देखो दोनों तरफ फिनाइल होने से डायराइल मीथेन, इसको डायराइल मीथेन बोल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 100% इनोलिक। स्पेक्ट्रम के बिल्कुल अपोजिट एंड पर आ गए, ये हो गया इसका कीटो फॉर्म, ये इसका इनोल बनाएंगे, एक का इनोल बनाएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, इतना ज़्यादा कॉन्जुगेशन है। तो फिनाइल ग्रुप आने से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप होने से तो ऑलमोस्ट 100% इनोलिक फॉर्म में चला जाएगा।
नाउ दीज आर थिंग्स विच यू लर्न लेटर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +R बोलते हैं उसको, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R उसको बोलते हैं. इसका क्या क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे. अभी 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे. मे बी यू विल बी एबल टू रिलेट टू दिस अ लिटिल लेटर ऑन. OCH3 का लोन पेयर है, +R होता है, ये और मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा. इसका जो +R होता है वो हेल्प करता है यहाँ पर इनोल बनाने में, तो ये इनोल बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा. और इसका जो -R आता है इसकी वजह से इनोल यहाँ नहीं बनता है, इनोल यहाँ पर बन जाता है. वही एक्टिव मेथिलीन कार्बन, वही एक्टिव मेथिलीन ग्रुप वही है, पर यहाँ पर OH बन रहा है, यहाँ पर ठीक बगल वाला OH बन जाता है. तो +R होने से इनोल में प्रोमोशन होता है, -R होने से इनोल कंटेंट थोड़ा कम जाता है. पर कोई भी रिंग होने से, कोई भी फिनाइल रिंग होने से इनोल कंटेंट ज़्यादा ही होगा. इन ऑल दीज केसेस इनोल कंटेंट विल बी वेरी हाई. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. 1,2-cyclohexane dione, 1,2-cyclohexane dione, 1,2-cyclohexane dione. First of all, see if you can relate it with the name. This is the structure given, 1,2-cyclohexane dione. 1,2-cyclohexane dione exists almost in 100% enolic form. ये कंपाउंड 100% इनोलिक फॉर्म में रहता है. यहाँ पर इनोल बना रहा हूँ, देखो इसका डबल बॉन्ड को OH बना दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया. इनोल फॉर्म, ये इसका इनोल फॉर्म है, ऑलमोस्ट 100%. इनोलिक फॉर्म ऑलमोस्ट 100% होता है. कीटो फॉर्म इज नेग्लिजिबल. यहाँ पर डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है. द इनोल स्टिल इज वेरी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन. यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है, द इनोल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. यहाँ पर द इनोल इज स्टेबल बाय रेजोनेंस, चिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वांट टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स, सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. 1,2 मतलब पास में. 1,2-cyclohexadienone, हेक्सेन डायोन. 1,2 मतलब पास में. ये OH बनेगा, पाई बॉन्ड ऐसे लगाएंगे जो डबल बॉन्डों के साथ में रेजोनेट करे, डबल सिंगल डबल. इसका इनोल बहुत स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से और चिलेशन की वजह से. चिलेशन मतलब यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पर भी एक रिंग जैसा बनेगा, रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है. पर रेजोनेंस और चिलेशन से तो पहले भी इनोल कंटेंट बढ़ता था. 100% क्यों हो जाता है? इनोल कंटेंट ज्यादा रहता है, पर इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? 100% क्यों हो जाता है? यहाँ पे सिर्फ बात इनोल का स्टेबिलिटी का नहीं है. यहाँ पे इनोल का स्टेबिलिटी के साथ में ये देखेंगे कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल भी है. यहाँ पे इनोल फॉर्म का स्टेबिलिटी के साथ ये देखेंगे कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल भी है. यहाँ पर जो दो डबल बॉन्ड है, पास होने की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पास में नेगेटिव पॉजिटिव बहुत अनस्टेबल होता है. तो यहाँ पे दोनों फैक्टर ऑपरेट करते हैं. यहाँ पर दोनों फैक्टर ऑपरेट करता है, एक कि इनोल बहुत स्टेबल है, दूसरा कीटो फॉर्म बहुत अनस्टेबल है. सो आई होप यू आर गेटिंग मी एंड यू विल वांट टू रिमेंबर दैट दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स विल अगेन हैव वेरी हाई इनोल कंटेंट, ऑलमोस्ट 100%. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केसेस जहाँ पे इनोल ऑलमोस्ट 100% है, कीटो फॉर्म नेग्लिजिबल है. And one very particularly important case will be when the enol is aromatic. When the enol is aromatic, phenol being such a common example. So phenol का ऐसा कीटोफॉर्म भी बना सकते हैं, फिनोल का ऐसा कीटोफॉर्म भी बना सकते हैं, पर ये कीटोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है. फिनोल का ऐसा कीटोफॉर्म भी बना सकते हैं, पर फिनोल का कीटोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता. ये कंपाउंड 100% इनोलिक फॉर्म में ही रहता है. तो वी स्टार्टेड विथ नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन, जहाँ पे इनोल कंटेंट वाज नेग्लिजिबल, कीटोन फॉर्म वाज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म. Now certainly we're talking about cases जहाँ पे इनोल almost 100% है. A very classical example is phenol which is 100% इनोलिक. इसका कीटो फॉर्म दिखता नहीं है. तुम लोग रिवर्सिबिलिटी पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबिलिटी पढ़ोगे. ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का बात था, कीटो इनोल फॉर्म एक साथ कोएग्जिस्ट करना चाहिए था. ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर ये पूरा आगे जा रहा है, पीछे जरा सा जा रहा है, इसका मतलब है कि पीछे जाता ही नहीं है. इसका एक कीटो फॉर्म ही नहीं दिखता है, 100% इनोल फॉर्म में दिखता है. तो फिनोल इज अ क्लासिकल एग्जांपल. एंड नेचुरली इस तरह का जो कंपाउंड होगा, साइक्लोहेक्सा 2,4-डाइनोन, साइक्लोहेक्सा 2,4-डाइनोन, साइक्लोहेक्सा यहाँ से काउंट करेगा 2,4-डाइनोन. तो साइक्लोहेक्सा 2,4-डाइनोन 100% इनोलिक होगा, क्योंकि इसका इनोल एरोमेटिक है. बेंजीन रिंग एरोमेटिक, हकल्स रूल, यू नो अबाउट एरोमेटिसिटी. So enol is very stable due to very high resonance energy of aromatic ring. In these cases, enol will be 100% firm, कीटोफॉर्म will be negligible. अब ये एरोमेटिसिटी एक डबल बॉन्ड O का, एक कीटो का इनोल बनने से भी आ सकता है. और ये अगर दोनों मान लो इनोल बन गया, एक पाई बॉन्ड आएगा, एक पाई बॉन्ड आएगा. ये अगर तीनों इनोल बन गया, 1 2 3 तीनों पाई बॉन्ड आएगा. ये ना थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है.
ये तो ऑलमोस्ट पूरा, ये जो मैंने पहले लेफ्ट से राइट दिखाया था, पहले जो मैंने लेफ्ट से राइट दिखाया था, जो पहले मैंने लेफ्ट से राइट दिखाया था, वही अब मैं राइट से लेफ्ट दिखा रहा हूँ। पहले कीटो से इनोल बना रहा था, अब इनोल इनोल को रिएक्टेंट का फॉर्म में रखा हूँ, तो ऑब्वियसली ये आगे बहुत कम जा रहा है, पीछे बहुत ज्यादा आ रहा है, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बन रहा है। इसका एक इनोलाइजेशन से एरोमेटिक होता है, ये दोनों का इनोलाइजेशन से एरोमेटिक होता है, ये तीनों का इनोलाइजेशन से एरोमेटिक होता है। थोड़ा बहुत नाम भी जानना चाहिए, थोड़ा बहुत नाम भी जानना चाहिए, पर ये कंसेप्ट थोड़ा सा हेवी वेट है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा हेवी वेट है। फिनॉल है, ये दोनों को OH होने से रेसोर्किनॉल बोलते हैं, ये 1,3,5 ट्राइहाइड्रोक्सी होने से फ्लोरोग्लूकिनॉल बोलते हैं। यहाँ पर इसका इनोलाइजेशन होने से फिनॉल बना, ये दोनों का इनोलाइजेशन होने से 2 पाई बॉन्ड आएगा, ये एरोमेटिक बनेगा, रेसोर्किनॉल बना। यहाँ तीनों OH 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 बन जाएगा, 3 पाई बॉन्ड आएगा, तीनों OH 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 बन जाएगा, 3 पाई बॉन्ड आएगा, फ्लोरोग्लूकिनॉल। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। यहाँ पे तो मैंने बोला ये 100% इनोल फॉर्म रहेगा, दिस विल बी 100% इनोल फॉर्म। एरोमेटिक रिंग बन रहा है, कीटो फॉर्म विल बी ऑलमोस्ट 0%। पर यहां पर जब 2 कीटो को खत्म करना पड़ रहा है एक ही रिंग बनाने के लिए, देखो एरोमेटिसिटी से जो स्टेबिलिटी हो तो तीनों में बराबर है, तीनों में एक ही एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिसिटी से जो स्टेबिलिटी है वो तो तीनों में बराबर है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, पर यहां पर 2 कीटो फॉर्म तोड़ना पड़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लग रहा है तोड़ने में, तो यहां पर इनोल फॉर्म पूरा 100% नहीं होगा, कीटो फॉर्म बिल्कुल 0% नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पर 3 डबल बॉन्डों को तोड़ना पड़ रहा है, दिस इज वेरी स्टेबल, दिस विल बी द प्रीडोमिनेंट फॉर्म, बट दिस विल नॉट बी 100%। रादर ये एरो हेड्स देख के समझ में आना चाहिए कि तीनों ही पीछे जाएगा, तीनों ही मेजर होगा इसके इनोल फॉर्म, पर ये थोड़ा सा बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 0% है, ये थोड़ा और आगे जाएगा, ये 0% से थोड़ा ज्यादा रहेगा, और इसका कीटोन कंटेंट थोड़ा और ज्यादा रहेगा, तो कीटो कंटेंट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस मोर देन दिस मोर देन दिस, तीनों का ही प्रीडोमिनेंट फॉर्म इनोल रहेगा। पर यहां पर हम लोग बोल देते हैं कि इनोल कंटेंट 100% है, इन दोनों में इनोल कंटेंट 100% नहीं रहेगा, पर इनोल विल बी द मेजर फॉर्म इन द मिक्सचर, क्योंकि तीनों में रिंग का एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी तो वही है, बट नेचुरली जब ज्यादा कीटो ग्रुप को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है तो इनोल कंटेंट उतना नहीं होगा जितना पहला केस में है। तो ये थोड़ा सा हेवी वेट कंटेंट है, तीनों में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, पर कीटो फॉर्म बिल्कुल यहां जैसे 0% होता है, यहां थोड़ा होगा, यहां थोड़ा और ज्यादा होगा। Finally, we'll want to summarize it, which is this order of enol content. Aldehyde ketone, I've written it in the black ink, in the chemical language. This is the bond line form. Aldehyde ketone, normal aldehyde ketone का सबसे कम इनोल कंटेंट होता है, उससे ज्यादा होगा बीटा डाई ईस्टर का। बीटा डाई ईस्टर मतलब ये भी ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये भी ईस्टर, ये भी ईस्टर। यहाँ पर एक्टिव मेथिलीन ग्रुप आ गया है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप आ गया है तो थोड़ा सा इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा डाई ईस्टर। अब ईस्टर ग्रुप से ज्यादा होगा अगर एक एक ईस्टर ग्रुप की जगह एल्काइल ग्रुप लगाए, तो ये है एसिटोएसिडिक ईस्टर, अगर यहाँ पर इथाइल होता है तो अल्फा बीटा कीटो ईस्टर, फिनाइल ग्रुप आने से कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा, बीटा कीटो ईस्टर विद फिनाइल ग्रुप। उसके बाद अगर बीटा डाइकीटोन है, बीटा डाइकीटोन में आई टोल्ड यू बीटा डाइकीटोन का इनोल कंटेंट बीटा कीटो एस्टर से ज्यादा होता है, ये EAA होने से 8% करीब था, इनोल ये कम से कम करीब 76% हो गया था, और यहाँ पर भी फिनाइल लगाने से लेकिन इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा। अगर दोनों तरफ फिनाइल है तो इनोल कंटेंट ऑलमोस्ट 100% जाएगा, जिसको डायराइल मिथाइल बोलते हैं। तो ये ऑर्डर भी समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन में क्लास में सॉल्व करवा रहा था, दो बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, इन दोनों का इनोल नहीं बनता है। मैं दोनों कंपाउंड एक बार फिर से बना लेता हूँ। कंपाउंड ए और बी जिसका इनोल नहीं बनता है, दीज टू कंपाउंड्स लुक लाइक, दिस इज कंपाउंड ए, वेरी पॉपुलर, ऑलमोस्ट सारा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, काफी पुराना आईडी का प्रॉब्लम है। इसका नाम है पैराबेंजोक्विनोन। पैराबेंजोक्विनोन एक कलर्ड कंपाउंड है, पैराबेंजोक्विनोन, इनोल नहीं बनता है इसका। और ये एक और स्ट्रक्चर है जिसका इनोल नहीं बनेगा। ये बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। पैराबेंजोक्विनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन है। प्रॉब्लम है कि अल्फा हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन sp2 है, इसका इनोल नहीं बनता है, देयर इज नो इनोल बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ चुका है, वेरी पॉपुलर फॉर ऑल इन द एग्जाम्स, पैराबेंजोक्विनोन।
ये जो चारों कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है जिससे हाइड्रोजन निकाल के इनोल बना सकते थे, अल्फा हाइड्रोजन है, एक चारों जगह अल्फा हाइड्रोजन है, पर ये हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है। जो हाइड्रोजन sp2 कार्बन से लगा रहता है, जो हाइड्रोजन sp2 कार्बन से लगा रहता है वो नहीं निकलता है इनोलाइजेशन में, टॉटोमरिज्म में, इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव। ये इसका राइट आंसर है, इसको अच्छे समझ लो, बहुत सारा किताब में बहुत उलझुल लिखा हुआ है, सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है किताबों में, इसको ध्यान से सुन लो। दिस इज द राइट आंसर। sp2 कार्बन से हाइड्रोजन निकालना डिफिकल्ट होता है, sp2 कार्बन का एस्केलेटर ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, और ये मैं बाद में प्रूफ करूंगा, बाद में मैं प्रूफ करूंगा, इसका कोई रिएक्शन दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा कि जैसे ही sp2 से sp3 होगा टोटोमरेज कर जाएगा। sp2 कार्बन से हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, पैराबेंजोक्विनोन का कोई इनोल नहीं होता है। इस कंपाउंड में ये एक अल्फा कार्बन है, तो ये तो मैंने बताई थी, अल्फा कार्बन यहाँ पर sp2 है, पाई बॉन्ड मतलब sp2 है, तो इससे इनोल नहीं बन सकता। अगर मान लो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है इसमें से कोई हाइड्रोजन लेकर के इनोल बनाया, अगर इसका इनोल बनाया तो पाई बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अगर इसका इनोल ऐसा सोचते हो, ये कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म भी पॉसिबल नहीं है, याद करो ये इनोल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये रिंग है, प्लेनर है, 4 पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक, वेरी वेरी पॉपुलर, ये सब याद रखना पड़ेगा। साइक्लोब्यूटाडाइन जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, सारा कार्बन sp2, प्लेनर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंटी एरोमेटिक, वेरी अनस्टेबल, तो यहाँ पे इनोल नहीं बनता है बिकॉज यहाँ पर इनोल एंटी एरोमेटिक होगा। कहीं पर एरोमेटिक होने से उसका बनने का चांसेस बढ़ जाता है, कहीं पर कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो रहा है तो वहाँ पर इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, पर कहीं पर कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक हो रहा है तो वहाँ पर उसका इनोल नहीं बनेगा। इसका इनोल नहीं बनता है बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है नेचुरली। कहीं पर अगर कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो वो 100% इनोलिक फॉर्म में ही रहेगा, इसका 100% फॉर्म इनोलिक ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर एरोमेटिक रिंग आ जाता है। सो यू नो दिस मच फॉर द टाइम बीइंग। We'll be solving more questions based upon the order of enol content. You'll find various questions in different entrance exams. I'll give you more questions by the end of the session. This much for the time being. Thank you so much.